Good morning, dear students from all branches, all years. It's a real privilege to speak to you my mind, my experiences, which I have gathered over the period of time while I stayed in the college for 3 decades now, and also elsewhere. I have been rather a very keen observer of things. So mostly that I'll speak to you about my observation, about my experiences. So there are occasions when you probably do not agree with me, or you may agree with me. That is entirely your choice. And there is no set rule. I would not be talking about any universal values like the sun rises in the east, the sun sets in the west, water boils at 100 degrees centigrade. And those statements cannot be refuted. So it's all based on my personal experience. To begin with, I would like to cite a small story. It's meant for the students. It's meant for all of us. Two friends, they were walking down. One was something like 30 years old, and the other one was some 8 years old, 9 years old. So they just were making a conversation, and while making a conversation, they wandered along the road. They went into the forest, deep forest. Nobody was there in the forest. And what actually happened, the small boy of 9 years old, although both of them were friends, they were just moving. So the elder one, 30 years old, with he was a huge hill of flesh, very stout. He fell into the well. कुएं में गिर पड़ता है, 30 years old. And in the deep forest, nobody was seen around. Nobody, even in the remote distance, nobody was seen. Only that 9-year-old boy was there. And that man, in fact, started shouting and shouting, "Help, help, take me out." तो वहाँ पे कोई नहीं था. That boy, what he did, that 9-year-old boy, he just put rope inside the well and he started pulling that stout and heavy friend. तो वो बहुत कोशिश किया, मशक्कत की, and धीरे धीरे करके वो जो है उससे बहुत मुश्किल के बाद उसको निकाल लिया. And it was very amazing feat. It was unbelievable that a small 9-year-old boy could be able to pull a 30-year man, well built, just triple his weight. तो बाद में ये पता चला कि हाउ इज इट पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे हो सका कि ये 30 इयर्स एक भारी भरकम आदमी को वो छोटा सा बच्चा जो है 9 इयर्स का कैसे निकाल. यू नो द रीजन, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीजन. तो एनालिसिस करके ये पता चला कि इट वाज ओनली पॉसिबल कि उस जगह पे, उस फॉरेस्ट में, वेल के पास कोई ऐसा आदमी नहीं था जो उसको कह सके इट इज इम्पॉसिबल. एंड दिस वाज ओनली पॉसिबल दैट हिज माइंड, द स्मॉल बॉयज माइंड वाज नॉट फेड विथ नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिविटी. तो हमारे आसपास हम लोग जो रहते हैं उसमें पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है. तो क्या होता है कि हम हर समय हम लोगों को कहा जाता है डू दिस, डोंट डू दिस, ये तुमसे नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है, दिस इज इम्पॉसिबल, दिस इज इनक्रेडिबल, ये एवरीथिंग. सो आवर माइंड इज इन फैक्ट ए कॉन्फ्लैग्रेशन ऑफ इन फैक्ट बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव थॉट्स. और ये चीज को अगर हम लोग शुरू से इनिशियली डिस्पेल कर दें कि we would not allow negative thoughts to enter our mind, that then nothing is impossible for us, and especially for young students, those who are dreaming with
lot of energy. तो what is more important, कहने का तात्पर्य है कि हम लोगों को अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव थॉट से we have to allow those positive thoughts to enter into our mind. Let we fill our mind with all such negative, positive thoughts. That is very, very important. And then there is nothing impossible, nothing very difficult. So, to initiate you, I have quoted this kind of thing. Now, apart from this, before we set on our journey of career, journey of life, most of us are running after elusive thing. दौड़ में दौड़े जा रहे हैं, भीड़ में, है ना? There is a mad rush. It is a rat race. We do not know what do we actually want. What do we actually want in life? We never define our purpose in life. है ना? We don't define our purpose in life. बॉम्बे में एक 7 साल की बच्ची है, स्कूल में पढ़ रही है, तो उसको असाइनमेंट दिया गया क्लास टीचर के द्वारा कि व्हाट इज योर एम इन लाइफ। दूसरे दिन असाइनमेंट में सारे बच्चे पेजेस के पेजेस लिख करके लाए, एक बच्ची चुपचाप खड़ी बैठी हुई है। तो व्हाट इज योर असाइनमेंट, द क्लास टीचर आस्क्ड। शी शोड, उसमें एक वर्ड लिखा हुआ था एंड you have not understood, teacher, you have not understood the assignment. और सब तुम्हारे friends है, they have written pages after pages and you have written only one word. तो वो बच्ची छोटी कहती है, yes, sorry, it is possible that I have not understood the meaning of my assignment, but most of my friends and even teacher have not understood the meaning of life. उस वर्ड वो बच्ची लिखी थी HAPPY. This is the purpose of life. तो ultimately what is important is कि happiness. You have to seek happiness wherever you are. तो इसके लिए what is important is your पहला choice of career. Choice of career is very important. Now what we do that most of us we choose career. वो करियर जो चूज करते हैं वो दूसरों के द्वारा लादा गया है. वी डू नॉट फॉलो आवर ओन बेंड ऑफ माइंड, बेंड ऑफ इंटरेस्ट, बेंड ऑफ जीनियस. हमारी बेटी को इंजीनियर बनना है, हमारी बेटे को मेडिसिन में जाना है, इसको आईएएस बनना है. तो क्या है कि जब बलपूर्वक कोई चीज लादा गया है तो वो जो कैरियर होता है अल्टीमेटली इट बिकम्स सो परफेक्ट, इट बिकम्स वेरी बोरिंग. वो लगता है ना कि जो गाड़ी चलती है वो घिस रहा है, पहिया चल रहा है ये पे ट्रैक पे. तो उस तरीके का यू हैव टू सी टू इट व्हाट इज योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट इज योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट. और व्हेन यू चूज अ वोकेशन, व्हेन यू चूज योर करियर in tune with your choice, in tune with your natural bent of mind, then the entire journey of life becomes very gleeful, full of mirth. You enjoy every bit of it. Every bit of it. अगर मुझे बनना है कि I have to do classroom teaching and teaching English, I have chosen it as my love, not as a necessity, rather it was a choice for me and I took up this. तो मुझे बहुत मन लगता है, I excel every day. तो ये चीज जो है it is very very important, the kind of career that you choose for yourself, and if it is after your interest, if it is after your taste, तो पूरा life it becomes very very easy. उसमें आप excel भी करते हैं. Otherwise you remain a mediocre, you remain an average. There is no room for inventiveness, there is no room for creativity. और अपना अगर जो चॉइस का है तो वहां पे क्या हो जाता है, there is a sense of creativity, you apply your own ingenuity, there is a sense of inventiveness. तो वो चीज is very important in life, that you select a career that is after your choice,
after your test. तो क्या है कि जो A.G. Gardner है, he in fact talks about 7 kinds of intelligence. There are different kinds of intelligence. अब Sachin Tendulkar, he was a failure in academic. He could not even pass his class 12th exam. But then, could you call him a failure in life? He is not a failure in life. उसके पास कौन सा इंटेलिजेंस है? Athletic intelligence. Athletic intelligence. And he is the pinnacle of glory in sports, athletics. तो वो जो परसू किया अपना ड्रीम, जो करियर, according to his taste. 3 बजे रात में वो जो है उठता था और प्रैक्टिस के लिए जिम खाने स्टेडियम बॉम्बे में जाता। एक मैं कहीं पे पढ़ रहा था, नवजोत सिंह सिद्धू के साथ वो बैटिंग कर रहा था, नवजोत सिंह सिद्धू के साथ बैटिंग कर रहा था और वकार यूनुस, वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर, उसका नाम सुनते ही बैट्समैन को डर हो जाता था कि 150 के स्पीड से बॉलिंग कर रहा है, ओपनिंग कर रहा है, और वहां पे एक छोर पे खड़ा है नवजोत सिंह सिद्धू और उसके साथ सचिन तेंदुलकर एट द एज ऑफ ओनली 15 years, समझो उस बच्चे को, और वो खेल रहा है और वकार यूनिस का वो गेंद, मतलब लीथल, ही वाज लीथल, और वो बॉलिंग कर रहा है और वो आया, गेंद आई और चोट लगा इतना जोर से, एंड ब्लड वाज ओजिंग आउट ऑन द पिच। नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि जो शायद ये गया, इज नो मोर, ही डाइड। पूरा वहां से आया, पूरा पिच जो है, उसका बॉडी जो है, उसके कपड़े जो है, इट वाज ड्रेंच्ड विद ब्लड, ऐसी चोट आई। और सबको ही कहा कि जो अब थोड़ा सांस तो ले रहा था, सभी आए और कहे कि चलो ड्रेसिंग रूम में, ही विल बी टेकन टू द हॉस्पिटल। वो 15 साल का लड़का खड़ा हो गया पिच पे और बोलता है वहां, मैं खेलेगा, मैं खेलेगा, और ही एक्चुअली डिड प्ले। वो जज्बा था उसके पास, क्योंकि वो जो खेल रहा था वो इंडिया की तरफ से खेल रहा था और उसका वो पैशन था खेलना। और वकार यूनिस को ये में वो प्रोबेबली ही स्कोर्ड 40, वो 15 वर्ष का बच्चा, और वो सनसनाती हुई गेंद के साथ। तो क्या था उसके पास? वो पैशन था, वो उसके पास एक ललक थी, जज्बा था। तो दिस इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ही वाज नेवर ए फेल्यूर। Talk of Lata Mangeshkar, who recently died. She was all academic failure. She never attended any of the colleges as such. She never showed her academic brilliance. लेकिन she chose her vocation, music में, है ना? तो उसको कहते हैं rhythmic intelligence. Rhythmic intelligence. तुम इंजीनियरिंग कर रही हो, तुम लोग के पास academic intelligence है, लेकिन लता मंगेशकर के पास rhythmic intelligence था. She also reached the pinnacle of her glory. Who doesn't know Lata Mangeshkar for her sweet voice and array of song she sung for the country and even abroad. तो कहने का मतलब यह है कि आपको जो चीज में इंटरेस्ट है वो आप जरूर कीजिए, एंड देयर इज नथिंग लाइक ये बड़ा जॉब है और ये छोटा जॉब। Nothing like this. You are part of that organization. You are part of the society. You are part of the society. You are part of the country. You are part of the globe. तो वो चीज जब आप करते हैं तो it is very very important. और इसी संदर्भ में मैं बार बार कोट करता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, सभी जगह मैं बात करता हूँ कि जॉन एफ कैनेडी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, है ना, पढ़ा होगा। तो उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी अपनी लिखी। तो व्हेन ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, द फर्स्ट थिंग ही वांटेड टू विजिट नासा सेंटर। नासा का नाम सुना है? नासा सेंटर। एंड ही विजिटेड, ही स्पोक टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल वर्किंग इन नासा, ग्रेट साइंटिस्ट्स। सो ही वाज स्पीकिंग टू देम, एंड देन ही सॉ अ वेरी shy man standing near the door. Just he called him, the president. Come here, come here, come here. बोला, कहता कि जो, what do you do?
What do you do? That is what President John F. Kennedy asked the man. So that was the time when everyone was making expedition to moon, है ना, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड ऑल. तो पूछा क्या कि जो व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो? तो दैट मैन ही वाज अ दरबान, ही वाज अ जैनिटर देयर इन नासा. तो उसने जो वो जवाब दिया, आंसर दिया, दैट इन फैक्ट स्ट्रक द इनरमोस्ट चेंबर ऑफ हिज हार्ट एंड माइंड, प्रेसिडेंट्स माइंड. इट वाज फेनोमेनल दैट आंसर ऑफ दैट गार्ड, दैट जैनिटर. वो कहता है, आई एम हेल्पिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन टू रिच द मून. दैट वाज द आंसर. वो उसका जज्बा देखो. वो ये नहीं कहता मैं गार्ड हूं यहां पे, मैं जैनिटर हूं, मेरा काम है सफाई करना, यहां पे क्लीन करना. वो आई एम हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन टू रिच द मून. तो अब क्या है कि कोऑपरेशन है ना, कोई भी संस्था जो है, कोई फैमिली जो है, वो क्या चलता है, वो कोऑपरेशन से चलता है, टुगेदरनेस से चलता है ना, मिलकर जो बातें होती हैं वो उससे चलता है. ये कॉलेज है, वो कैसे चलेगा? तो मिलकर करके के जो है, सभी जो है यहाँ पे, वो मिल करके जो करते हैं, वही वो यूएसपी होता है. एक यूएसपी होता है, उसको कहते हैं यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन. यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, है ना. तो व्हाट इज यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन? यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन जो है, ये जैसे अब अमेरिका की बात लीजिए, तो व्हाट इज द यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन ऑफ यूएसए? यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन ऑफ यूएसए इज लिबर्टी. लिबर्टी, लिबर्टी के धरातल पर ही अमेरिका का विकास हुआ है. फ्रीडम, लिबर्टी. अब जैसे व्हाट इज द यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन ऑफ मिडिल ईस्ट? क्या है? ऑयल. ऑयल. जापान, जापान का यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन क्या है? टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी इज द यूनिक सेलिंग. तो जापान की बात करते हैं और स्ट्रेट अवे मन में आ जाता है न्यू टेक्नोलॉजी की बात आती है. व्हेन वी टॉक इन टर्म्स ऑफ इंडिया, व्हाट इज द यूएसपी ऑफ इंडिया? कैन एनीवन टेल व्हाट इज द यूएसपी ऑफ इंडिया? या जुगाड़. यहां पे क्या है कि ये जो शशांक शेखर शर्ट पहने हुए हैं, मे बी आफ्टर 2 months ये शर्ट में होल हो जाएगा, होगा ना? हाँ, होल होगा. कहेंगे चलो बचाने के लिए रात में इसको पहन लेंगे, कॉलेज पहन के नहीं जाएंगे. हाँ, उसके बाद ये थोड़ा और ज्यादा फट जाएगा, बिगर होल्स होंगे, तो कहेंगे इसको क्या करना चाहिए, चलो इसका पोछा बनाते हैं. तो दैट इज द यूएसपी ऑफ इंडिया. ये यूएसपी ने बनी. I humorously I made USP of India is human resource. I mean human resource के मामले में we are very very rich. ये सबसे बड़ा यहाँ की पूंजी है इंडिया की. तो उसको somehow that we need to exploit it to the full. इसीलिए आज इंडिया में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को जॉब्स इतने मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं? अमेरिका में there are very few people. यहाँ पे इतने सारे इंजीनियर्स हैं कि they are getting jobs. और उस ये जितना काम करते हैं विप्रो में, जितना इन्फोसिस में काम कर रहे हैं, जितना भी एक्सेंचर में काम कर रहे हैं और सब जगहों में काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में, दे आर गेटिंग लिटिल अमाउंट. कहने के लिए कहता है 20 lakhs मिल गया पर एनम, 30 lakhs मिल गया पर एनम. लेकिन ये जो हमारे बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में, उनके थ्रू अमेरिका जो है, जापान है, जर्मनी है, इतने पैसे कमा रही है. दे आर गेटिंग ओनली पीनट्स आउट ऑफ इट. इट इज बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स जो इंडिया में, इट इज इन एबंडेंस. दैट इज आवर यूएसपी. यूएसपी मेरा ये कहने का मतलब है कि एवरीवन इन द कॉलेज इवन is having one unique quality. Everyone is blessed with a unique quality. किसी में ये क्वालिटी है, किसी में कोडिंग में बहुत अच्छे हैं, कोई डिबेट में बहुत अच्छे हैं, कोई फिजिक्स में बहुत अच्छे हैं, कोई केमिस्ट्री में बहुत अच्छे हैं, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत अच्छे हैं, किसी का मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है, किसी का डिबेटिंग स्किल बहुत अच्छा है, किसी का
एनालिटिकल एबिलिटी बहुत अच्छा है। तो जब आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज योर यूएसपी, तो यू कम आउट विथ योर मोस्ट टैलेंटेड एलिमेंट, मोस्ट डोमिनेंट एलिमेंट बाय विच you move forward in the world, you walk outside your room. मुझे कहा जाता है कि when you come out of your house, of your residence at 10 o'clock in the morning, what do you carry with yourself? मैं कहता हूँ, well, I carry my confidence. I carry my confidence. I'm asked generally, what is your USP? I say it is my confidence. To tell you very frankly, you are my student. मैं कभी भी I am second to none. Even if I have to go to Prime Minister, if I have to go to President of India, well, I will make my point. It is because of my confidence. I have always lived with my confidence, and that has given me go-getting. तो हर एक लोगों का एक यूएसपी होता है, और जब वो कलेक्टिव यूएसपी हो जाता है सभी का, तो उससे क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन की पहचान बनती है। Somehow or other, IIT दिल्ली है, तो IIT दिल्ली का ये है कि कोई विशेष उसका पहचान है। मैं गया था IIM उदयपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उदयपुर, तो देखा कि सब कुछ वहां पे है, लेकिन सबसे डोमिनेंट ट्रेट वहां का क्या है, रिसर्च। एवरी टीचर, एवरी फैकल्टी, एवरी स्टूडेंट वाज इन्वॉल्व्ड इन रिसर्च। तो रिसर्च के मामले में दैट इज वेरी वेरी रिच, एंड दैट इज द यूएसपी ऑफ IIM उदयपुर। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक यूएसपी होता है, और यूएसपी किससे बनता है, यूएसपी बनता है वहां की फैकल्टी से, वहां के स्टाफ से, एंड ईच एंड एवरी स्टूडेंट कंट्रीब्यूट्स टू दैट यूएसपी, और उससे उसकी पहचान बनती है। क्योंकि दिस इज एन एज ऑफ मार्केटिंग। अपने कॉलेज को वी हैव टू सेल द प्रोडक्ट, है ना। ये जो है इट इज ए प्रोडक्शन यूनिट कॉलेज, और प्रोडक्शन यूनिट में हमारे स्टूडेंट जो हैं वो मटेरियल है, एंड वो मटेरियल वी हैव टू सेल इट इन द मार्केट। तो उसकी पहचान कैसे बनेगी, भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। कुछ दिन में ऐसा होगा कि यहाँ के जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, दे आर वेरी वेरी गुड एट कोडिंग। यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं, वो क्या है, दे हैव गॉट वेरी गुड एनालिटिकल एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग। तो कहने का तात्पर्य है कि ऑल ऑफ यू डेवलप दैट काइंड ऑफ यूएसपी इन योरसेल्फ। और जब आपका यूएसपी एक रिकॉग्नाइज्ड हो जाता है, देन डिटरमिन हो जाता है, देन व्हाट एक्चुअली यू आर कट अबव द रेस्ट इन द वर्ल्ड। आपकी जो पहचान जो होती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए तो पहचान जाएगा, वो दिस मिस्टर अकेला, oh he is known for this his critical thinking, उसकी पहचान हो जाती है ना। तो वो चीज आप अब यूएसपी पूरे लाइफ में, अभी तो स्टूडेंट है खास तौर से, अभी उस चीज का पहचान बनाइए। किसी एक चीज का डिग्री यू विल गेट, नो डाउट अबाउट इट। सम ऑफ यू विल बी गेटिंग 70% मार्क्स, a few will be getting 75% marks. उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, I tell you. There is no difference in the percentile of marks that you get at the end of your semesters. What is more important, what is more dominant, कि आपने इस ये में कितना जो है अपना यूएसपी डेवलप किया है, अपना इनर वर्थ डेवलप किया है ना, नॉलेज डेवलप किया है। तो दैट इज व्हाट इज योर पर्सनैलिटी। जो पर्सनैलिटी की बात ये कर रहे थे कि व्हाट इज पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी is the outer garrison polish. It is not the use of toiletry. It is not the use of lipstick. It is not the use of, modern dresses. ये नहीं है बहुत अच्छा हेयर स्टाइल कर लिया, वो कर लिया। This is not the personality. This is the outer garrison polish. तो personality क्या है? Personality is you are armed with knowledge. You are armed with knowledge. You're armed with knowledge. That adds to the personality. If you have knowledge, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है wisdom. Knowledge है, लेकिन it has to be used wisely. कितने wisdom से उसको यूज करते हैं। आप IAS के एग्जामिनेशन में जाते हैं, आपको 3 घंटे का एग्जामिनेशन होता है, and you have to give the best. Knowledge बहुत लड़कों के पास है, सभी ने 18 घंटे पढ़ाई की,
thousands and thousands of students, they have studied for more than 18 hours. I have seen students working, slogging for 12 hours, 13 hours, 18 hours for months together, years together. But why is it that only Shruti Sharma, who topped this time in IAS, she topped? Because she applied her wisdom in using that knowledge, in projecting herself in the interview, in answering the papers. So, knowledge and wisdom, both these elements, they must go together. That is very, very important in life. Or since you people are students, तो एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि our life is generally governed. बहुत सारी चीजें उससे govern होती है, लेकिन 4 important things which govern our life, they are: number 1 is your PQ. PQ. Second is IQ. Third is EQ. And fourth is, what is fourth? SQ. Now, what do these 4 abbreviations stand for? PQ is physical quotient. Physical quotient. As a student, well, it is very, very important that you keep yourself healthy and fit. That will also lead to your mental health, your academic health. आप क्या खाते हैं? That is very important. This is very important. अभी ठीक है, one term में चले गए, पिज्जा खा लिए, बर्गर खा लिए. Once in a while you could relish this nonsense, but not every day. You take healthy food. So वो PQ is very important, physical quotient. And then in fact the next important thing is your IQ. What is IQ? IQ is intelligent quotient. Now intelligent quotient जब कहते हैं, what does it mean? What do you mean by intelligent quotient? Intelligent quotient is, it is related to knowledge. आप कितना acquire की है knowledge, or when you get up tomorrow early in the morning, you try to assess, you measure कि कल से बेहतर आपका knowledge जो है उस upgrade हुआ है कि नहीं, परसों से बेहतर आप हैं कि नहीं, अपने आप को पाते हैं कि नहीं. When I see myself 10 years back as a teacher, and now if I evaluate, if I make self introspection, तो वो जो अपना पैरामीटर्स है उसमें अपने आप को देखते हैं कि हाउ मच डिड आई अपग्रेड माई सेल्फ एज ए टीचर, कितना और हासिल किए, स्किल कितना हासिल किया, नॉलेज कितना हासिल किया, कितनी किताबें पढ़ी, कितने अच्छे लोगों, कितने अच्छे से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया. तो ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की बात है. तो अपने इंटेलिजेंट क्वोशिएंट है कि इसको आप अपग्रेड करते रहिए. दैट इज इंटेलिजेंट क्वोशिएंट. एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट thing is your emotional quotient. It is very, very important. Emotional quotient. What is emotional quotient? Emotionally healthy. What does it mean? You are alive, emotionally alive to every fiber. What does it mean? Emotional quotient जो है, the word is empathy. It is not sympathy. It is different from sympathy. It is empathy. 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 What is empathy? आजकल के समय में खासतौर से इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं, when they take up job somewhere in any organization, this emotional quotient plays a very, very important role in shaping your career. Because you do not work alone in any organization. You are living in a hostel. You do not live alone. You live in a group. Friends are there, है ना? तो वो जो है, how you identify their feelings, how you identify yourself with the feelings of others. अपने रूममेट से कभी पूछा है कि वो why is it that she is depressed? Why is it that she is so sad? फैमिली में रहती है, उसको क्या तकलीफ है? You put yourself in the shoes of others, and then you try to take a decision. Suppose you are working in an organization and you are a team leader, and with you some
20 people are working, तो you have to know everyone's circumstance, situation, कि क्या ये है, why is it that she is not producing the best. हो सकता है उसका कुछ प्रॉब्लम्स हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है उसका कुछ स्ट्रेंजमेंट हो गया, अफेयर का प्रॉब्लम हो सकता है उसकी फैमिली से कोई प्रॉब्लम हो गया हो, इकोनॉमी कुछ ही हो. तो एज ए बॉस, एज ए टीम लीडर, योर इनफैक्ट ड्यूटी, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू आइडेंटिफाई द फीलिंग्स ऑफ अदर्स. एंड वंस यू आइडेंटिफाई द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, देन क्या होगा, प्रोडक्टिविटी वहां की बढ़ेगी. इट इज स्ट्रेट वे रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी. देखो क्या है ना कि अगर आप कॉलेज में ही हैं, स्टूडेंट्स के साथ हैं, अपने दोस्तों के साथ हैं, तो आप अच्छा कर रहे हैं, तो आप यह भी देखिए कि आपके साथ वाले भी अच्छा कर रहे हैं. इफ यू आर if you burn yourself with jealousy and envy, well, that is your loss. But if others are happy in your company, that is your greatest success. So that is important, that is emotional quotient. And fourth important thing to develop your personality is your spiritual quotient. A spiritual quotient, that is SQ. SQ के बारे में लोग समझते नहीं है. SQ से मेरा लेना देना ये नहीं है कि मंदिर में जाकर के पूजा करो, साईं बाबा का पूजा करो, मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ो. Nothing like it has nothing to do with religion as such. Nothing. It is more concerned with humanity. A spiritual quotient is like there are two engineers, ठीक है ना, या two doctors. एक जो डॉक्टर है, he is very successful in his life. He has multiplexes, 50 फ्लैट्स हैं उसके, बहुत सारी अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं. उसके जो बच्चे हैं, they are very very successful, लीडिंग सर्जन, IAS, ये सभी. तो उनसे पूछा गया, what is your purpose in life? तो कहते हैं, my purpose in life is fulfilled. I have achieved everything in life. I have got a beautiful wife. I have got, very successful children. I have got multiplexes. I have got fleet of cars. Well, so I have achieved everything. My purpose in life is complete. I have achieved everything. Whatever I wanted. वहीं पे दूसरा डॉक्टर है, उससे पूछता है, वो कहता है कि जो उसके पास भी सब कुछ है, उसके भी बच्चे सक्सेसफुल हैं, उसके बाद फ्लीट्स ऑफ कार्स हैं, उसके पास भी मल्टीप्लेक्सेस हैं, बहुत सारे बिल्डिंग है, सब कुछ है, उसके पास भी उतनी ब्यूटीफुल वाइफ है. तो कहता है कि जो व्हाट इज योर पर्पस इन लाइफ? तो वो कहता है दूसरा डॉक्टर, माय पर्पस इन लाइफ इज टू इरेडिकेट कोविड फ्रॉम दिस वर्ल्ड. माय पर्पस इन लाइफ is to eradicate chicken pox from this world. This is my purpose of life. So a person who goes an extra mile to do something for the humanity, for the cause of humanity, who adds something for the benefit of mankind, that is the spiritual quotient, and that has to be adopted in order to make your personality good. So these are some of the things that have to be valued in life. And I tell you कि जो हम लोगों ने जो बात की है कि we should learn how to play chess. चेस जो है वो क्या सिखलाता है? वो सिखलाता है how to work, कोऑपरेशन के साथ कैसे चलता है ना, कोऑपरेशन वगैरह से कैसे ये चलता है. लाइफ में कभी कभी कुछ चीज पाने के लिए कुछ चीज को सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है. करते हैं ना, चेस के बारे में सुना है ना. कभी कभी देखो रानी को भी लोग चेस में सैक्रिफाइस कर देते हैं. सबसे जो माने प्रिय चीज है, मोस्ट लवेबल थिंग, तो कोऑपरेशन के साथ चेस ये करता है, सिखलाता है. सेकंड चीज जो ये है वो है, एक पुराने समय में तुम लोगों ने नहीं देखा, तुम लोग तो कंप्यूटर पे टाइप करते हो, लैपटॉप पे टाइप करते हो. हम लोगों के समय में प्रोफेसर मिश्रा will be a testimony to this fact कि हम लोग बहुत पहले देखे टाइपराइटर होता था, देखे थे, टक 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 उठता था. अभी तो क्या होता है कि जो कंप्यूटर दबाए, अरे ये गलत हो गया, डिलीट तुरंत हो गया. उस समय में अगर कंप्यूटर पे टाइप होता था कोई चीज, टाइपराइटर पे टाइप होता था, तो
एक बार जब टाइप कर दी, उसको इरेज करने बड़ा मुश्किल होता है। एक इरेजेक्स आता था ना, इरेजेक्स, उससे हटाया वो टाइपराइटर, हम लोग ऑफिस में करवाते थे टाइप, और वो तब उसके बाद फिर टाइप किया, ये किया। तो मेरा ये कहने का मतलब, वो टाइपराइटर ये सिखलाता है लाइफ में कि वॉट एवर यू डू विथ diligence, with hard work. It also teaches you that opportunity never in fact comes to you twice. So every button that you click, well, it has to be done with a lot of thinking and rethinking. तो वहां पे इरेजेक्स की जरूरत नहीं पड़े. You grab that opportunity and you do it with a lot of wisdom. और थर्ड चीज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट इज द कैमरा. जो कैमरा जो है, उससे आप देखिए, वर्ल्ड व्यूज देखिए, नेचर को देखिए, गैंजेस फ्लोइंग डाउन, उसको देखिए, पूरे वर्ल्ड को देखिए. तो दैट एड्स, वो कैमरा जो है, इट एड्स, व्हाट डज इट ऐड? व्हाट डज इट ऐड? इट एड्स creativity. It adds creativity. And fourth important thing, I tell you, my dear, this is most important suggestion and advice from a teacher who has spent now 30 years in his teaching. What is it that? What is it that? What is it that? So the fourth most important thing which I would like to add, all of you are getting mature day by day, है ना. तो लाइफ में उतार चढ़ाव आएंगे, है ना. कभी दुख आएगा, कभी सुख आएगा, है ना. कभी नितांत अकेला लगेगा. सेंस ऑफ लोनलीनेस इज देयर, सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन विल बी देयर, बिकॉज लाइफ इज नॉट ए रोजी वॉक ऑल द टाइम. तो उन सब समय में you develop sense of humor. Humor का लोग महत्व समझते नहीं है. Develop good sense of humor. You try to laugh away some of the hurt. कोई हर्ट कर दिया अपनी बातों से, तुमको रोने लगी, है ना. होता है ना, कई फ्रेंड्स कर दिए, कभी हो सकता है फादर कर दिए, कभी मदर कर दिए, कभी तुम्हारे हस्बैंड कर देंगे, कभी तुम्हारी वाइफ कर देगी. तो you must learn how to drive away those hurts with a sense of humor, with a sense of laughter. This is very very important. अभी हॉस्टल में भी रहते हो तो अच्छी अच्छी बातों खूब हंसो, laugh like a king. That is very important. तो sense of humor जो है, लाइफ को क्या करता है, ईज बनाता है. It makes you easy live, है ना. और it invests you with a lot of wisdom. जीने की शक्ति देती है. So this is my today's advice, suggestions. I have just quoted all those things from my experiences, my observation, and my reading. And last but not the least, my advice, my suggestion is there is no substitute for reading. Reading. कभी भी हो, किसी भी क्षण, read good books. अच्छी किताबें पढ़ो. When you are in the company of books, you are never alone. Books, they are your greatest companions in life. कभी भी अकेला अपने आप को नहीं पाओगे. And reading क्या करता है? It gives you the prospect of delight. It gives you the prospect of wisdom. दोनों चीज उसमें ये होता है. It expands the vision of your life. 15th century में शेक्सपियर को पढ़ो, जेन ऑस्टिन पढ़ो, D.H. लॉरेंस पढ़ो, E.M. फॉस्टर पढ़ो, जॉर्ज इलियट पढ़ो, मॉडर्न जो जितने भी साइंस फिक्शन है उसको पढ़ो. तो क्या होता है? रीडिंग साइकोलॉजी बुक, रीड बुक ऑफ साइकोलॉजी, रीड बुक ऑफ हिस्ट्री, रीड बुक ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. तो इससे क्या होगा? एक्सपैंड करेगा विजन. नॉलेज तो देगा ही, विजडम भी देगा. पर्सनैलिटी में एक अजीब तरीके की आभा आएगी. देयर विल बी लाइट इमनेटिंग फ्रॉम योर हेड, आईज. A person who is really knowledgeable, one who is a scholar, well, that kind of light, it emanates directly from his heart, his mind. Purity of soul तुमको देगा. Soul will be purified by reading good books, good novels, anything.
that you read. तो रीडिंग को कभी नहीं भूलना till the last breath of your life. Read. कभी भी 5 ही पेज पढ़ो, 10 ही पेज पढ़ो, 2 ही पेज पढ़ो, but read at least 1 page daily. That is my, last advice. Thank you very much. Thank you for giving me a patient hearing. Some of the tips you can take, some of the tips you can laugh away. Thank you. Thank you.